Please don't ask. See, we have to work, we have to learn, with parallel approach towards everything. Not only grammar or such structure should be focused or preferred to all other things, but the lessons are also important from exam point of view. I should, I should give you the information, should give you the summaries of the lessons. Later on, when you will appear in your annual exam, at least you should not be suffocated. You should not be in trouble to feel my teaching as a curse, that we were not taught anything from the prose, poetry, or anything else. But I would tell you, I would deliver, despite resistance, despite unwillingness from your side not to accept, teaching on this sort of elements. But I will continue my teaching. So please, we have got a very wonderful lesson of a person. You know how much superior person we have got. Albert Einstein, has written this essay about the world as I see it. His observation, the world in his view, the world in his sight, the world in his eyes. So, see, when you read such persons or such icons, ideas and thoughts about the observation, about the world, about the people, you will be mature and sensible one to know that how the significant people spend their life. So it's really great to be seen here about the life. He has got the biography, his biography is here. Leave it now, but we will come down to, because you are well aware of his biography, that how much he is a superior person, how much he is a mighty character. Now we start from here. Not only start, but I should tell you where it is. It is difficult for me. Not difficult, but now see, we'll just we'll just explain, up to physically and mentally. Like these are the two key end words. Now, dear students, see that how Einstein has viewed, how he has observed, how he has assessed or analyzed the world. The initial paragraph or the introductory paragraph is big lesson for all of us. People like us who consider that we are born to be immortal character, immortal people. Look at the scientist. People say Einstein was deprived of spiritualism or religious sense, or he was not God-fearing person. By God, when I come across the story of Mr. Einstein, I find him as a totally saintly person, godly person. And you should also go about his faith. Okay, in the very first paragraph, you will be much inspired to see that what is the purpose, what should be our purpose. Where I come to discuss the same question from you, you say, sir, purpose is to be a doctor. Nothing else. No life hereafter. We have only one thing. But look at this from this person's point of view. He is not a small person. Okay. If I mention my reference, if I discuss myself about this thing, okay, it is invalid. It is useless. It is futile. You can say, sir, you are not talking good points. But it's a point taken from the first paragraph written by Einstein. And what is his objective? What is his purpose about the people, about the world? So, dear students, when we come across about such stuff or the substance of these people, we learn a lot and we get relaxed to see that these people had not only one thing in their mind, that he was only a scientist and focused only on being scientist. No. How he was to the people, how he wanted to see the people, how he wanted to treat the people, how he wanted to deal with the people. That was key to be seen now. So look at the lines. I will
read and then explain, but I will be much pleased if this explanation come from your side, then it will be really nice. How many of you explain the lines here, the lines of this lesson? If you explain, please. Would you? May I leave the first paragraph for your reading? Okay, you read initially. Okay, to physically and mentally. Please do read this paragraph first. Then tell how much you have got. Shabash. Do read it. Shabash. Read and make some sense. You seem to be good readers. Shabash. Only first paragraph. Have you got? Right. Let's come now to start the loud reading and its explanation. If any one of you shares, no matter, I will welcome. What an extraordinary situation is that of us mortals. Now, the mighty word, surprising or astonishing word it is that we are mortal. Okay? Or we are, dying people. Right? Will die one day, and he himself, will himself confess it. Mortal. We are mortal and getting ourselves to be extraordinary, getting ourselves to be different. Now, who says Einstein? If any Pindit or Molvi says, then we say, no, these are very conservative people or traditional people, so we won't accept their thoughts, their ideas. But a scientist, genius says, we are mortals. Achha, not only this, each of us is here for a brief sojourn. Sojourn का मतलब है आरजी वक्त, आरजी temporary time, temporary stay. Actually sojourn का मतलब है stay. जैसे आप आए ये stay और वापस घर जाओ. तो कौन कह रहा है? देखो, अगर कोई बात करता है तो हम उसे पागल कहते या हम उसे कम समझते, अपने आप को बड़ा समझते कि भाई देखो कैसी बातें करता है, ऐसी ऐसा है, ये हम एजुकेटेड हैं और हमारे सामने ऐसी बात ना की जाए तो अच्छा है, और कोई बात की जाए. लेकिन ये बात अब कौन करता है? आइंस्टाइन कर रहा है. क्या कहता है? ईच ऑफ अस इज हियर फॉर अ ब्रीफ सजन. हम में से हर एक इधर स्टे करने आया है. जो स्टे करने आता है, आप देखो तो स्टे का मतलब आरजी, उसका सफर है आरजी. वहां पर हम जिधर भी जाते हैं तो स्टे करके फिर घंटों का स्टे होता है, दिन का होता है, 2 दिन का, 4 दिन का, बस. ये कहता है ये. सो वन थिंग आई शुड टेल यू, he has defined life. Einstein has defined life. Einstein has disclosed the mystery of life, secret of life, that it is temporal, it is mortal, it is momentary. Okay, it is momentary. Moment समझते हैं? Moment. Life is just like a bubble. Life is just like a bubble, and it will burst one day. It will vanish one day. So it is still. You've seen bubble. Okay, when it rains, you might have wide and long courtyards.
in front of your verandas or your, proper houses, such a structure. You noticed when it rains heavily, you see bubbles emerge on the surface of that water. Small children rush to collect such bubbles playfully, but see, they vanish before reaching of a child. So life is like such, momentary, and it is totally invalid. Nobody knows about its expiry. We had better know about the expiry of this marker, about the expiry of this code, about the expiry of any other product we use, okay, manufactured, made by industries. But nobody knows about this, this expiry. So that is why he is much convinced, Einstein is much convinced that life is temporary. One thing about the life, okay, let me tell how many of us, you are also genius. Let me tell how many of us or how many of you believe this belief that life is temporary. Nobody, hardly anybody it is. But we actually forget. हमें याद नहीं है, हमें याद भी नहीं है ये चीज. मानना तो जिसको मानते हैं ना वो याद होती है चीज. हम तो मानते भी नहीं है इनको चीजों को, तब तो याद भी नहीं है. तो look at the line please. Start of the line. Go ahead. To what purpose he knows not. उसके बाद हमें पर्पस का भी पता नहीं. एक तो हमारा स्टे, भाई आप इधर आओ माना थोड़े वक्त के लिए, और आपको पता ना हो कि हम आए क्यों हैं. आप आते हो तो आपको पता है कि पढ़ने आए ना, पर्पस का पता है ना. लेकिन अगर ऐसा मतलब ही ना हो, आपको किसी चीज का पता भी ना हो, तो कैसे आप उस स्टे को डिफाइन कर पाएंगे. तो हमें अपने इस स्टे का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को इमोर्टल समझते, लाफानी समझते. बस बस ऐसे ही ये नहीं. आप देखें, फॉर व्हाट पर्पस ही नोज नॉट. मैन डजंट नो व्हाट इज हिज पर्पस. व्हाई इज ही सेंट इन दिस वर्ल्ड. व्हाई वी आर सेंट इन दिस वर्ल्ड, नोबडी नोज. आइंस्टाइन साइंटिस्ट, भाई आप तो साइंटिस्ट हो, आपको इतना बड़ा पर्पस मिला है, इससे बड़ा आपको क्या मिले भला. आपको तो मिला है. मुझे बताओ सबसे बड़ा डॉक्टर या साइंटिस्ट. साइंटिस्ट सबसे बड़ा होता है ना. सबसे बड़ा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, या सबसे बड़ा जो इधर उमरकोट में डॉक्टर काम कर रहा है. हाँ बताओ, जिसने एटम बम बनाया वो सबसे बड़ा, या ये जिसने सबसे बड़ी थ्योरी, सबसे बड़ा ये जिसने फिजिक्स लिखी, या माना कोई और जिसने प्रेशर किया है. हाँ, तो आप खुद देखो, वो खुद कहता है फॉर व्हाट पर्पस ही नोज नॉट. नोबडी नोज. वी आर इन कंफ्यूजन. We are not clear about life. We are not clear about life. We are in confusion, or we have forgotten this puzzle. हमने बस इसको हम भूल चुके हैं. We are in oblivion. Are you getting my point? We don't know what is life, but look at this one. Big realization, dear students. It's alert. It's alert from Einstein's side that you are here for the temporary time. Let me tell, when alert is, announced, we should realize the scope of life. For what purpose he knows not. Though he sometimes thinks, he feels it. Sometimes we think or feel. Otherwise, in daily life, nobody remembers. Nobody remembers this fact, this truth. It's a true, bitter truth, that we are here. We are born to die. We are born to die. Quite difficult. It's ugly to speak, but it's the fact. Is it so or not? Or I am talking wrong, or I am telling a lie. We are born to die. Okay, in between this time, in between this, entrance and exit. One is entrance in this world. The other one is the exit from this world. In between these 2 points, we have to achieve, we have to perform, we have to do something. We have to get our goals, and we are struggling, we are getting upset, getting nervous,
disappointed. Okay, this is what we forget the facts while we are getting nervous about the other things. इसके दौरान हम ये जो है इसका तो उन्हें पता भी अता पता भी नहीं, बाकी चीजों मामूली जो चीजें हैं हम उनके पीछे लगे हुए हैं, उनके बारे में परेशान होते जा रहे हैं, लेकिन ये तो हमें याद भी नहीं है कि क्या है। लेकिन हमें मतलब मैं आपको ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी रिलीजियस या किसी मौलवी या पंडित की कोई बात बताता तो आप बोलते सर ये तो क्या पढ़ाते हो हमें, लेकिन ये किसकी बात है? एक जीनियस जो डोमिनेंट है, तो कितना बड़ा माना, जिसके ऊपर किसको ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसके बारे में कोई जो है ना एतराज नहीं कर सकता, आखिर में वो भी माना ऐसे हो गए कि भाई जिंदगी तो ये है, मुझे तो पता भी नहीं पड़ा कुछ और भी। सो सी दैट though he sometimes thinks he feels it, so sometimes we feel that life is for the temporary time, life is short, life is short, okay, it is momentary, and nobody actually remembers the past days in it. But from the point of view of daily life, देखो विदाउट गोइंग डीपर, कहता है बस इतना ज्यादा नहीं सोचते, मतलब बहस नहीं करते, छोड़ो बोला चलो इस बहस को, बड़ी बात है ये नहीं करते, बस इतना सा काफी है। We exist for our fellow men. In the first place, for those on whose smiles and welfare all our happiness depends. Now see that the purpose he has disclosed, the purpose he has delivered, the purpose he has seen, he has noticed, the purpose he has traced, the purpose he has accepted our interest, that we are born for other people. We are born to facilitate other people. Okay? To solve the, anxieties of other people. We are born to be kind to other people, to be friendly to other people, to be human to other people, to be humble to other people, to be generous to other people. This is what should be our merit, our quality of life. This should be the quality of life. Let me tell how many of us are kind, good in our attitudes, behaviors, character, ethics, manners. Lot of such things need to have. Our life should be furnished with such qualities. He said that look at this man, that how much he was humble. Mana कितने ये माना soft hearted person थे, कितने soft hearted थे। ये क्या कहते हैं? The first place for those on whose smiles and welfare all our happiness depends. He means to tell those who are like farmers, laborers, sweepers, like such people who work for us. So we should do something for such people. We should give in return. We should give good feedback to those people. Lekin we hate such people. We don't treat properly. We don't, think better. So such things happen when we respect ourselves. जो इंसान अपनी इज्जत करेगा वही दूसरों की ऐसी इज्जत करेगा, जो अपनी इज्जत नहीं करता वो दूसरों की भी नहीं करेगा। जो इंसान खुद से नरम मिजाजी होगी, जो इंसान खुद से जो वो अच्छा होगा या नरम होगा, अपनी जिंदगी अगर किसी इंसान खुद की जो है ना बेहतर होगी या अच्छी होगी तो वो दूसरों से भी अच्छा होगा। अगर हम खुद फ्रस्ट्रेट हैं, अपसेट हैं, खुद कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, खुद डिस्प्यूटेड हैं, खुद हर वक्त ये गुस्सा क्यों आता है लोगों में? हमने देखो ना, अगर कोई हमारे ऊपर गुस्सा करता है तो हम उस पर नाराज हो जाते हैं कि या हमें कोई बोलता है तो एक्चुअली वो उसका खुद का मसला होता है, जाती अंदर जो है ना कोई काफी मसले होते हैं, वो काफी मसलों से लड़ रहा है वो अंदर अंदर में काफी। और फिर ये क्या है, फिर ये एक रिएक्शन या आउटलेट है, ये एक वोल्केनो का जो है ना मामला है। तो इसीलिए आप अगर खुद जो है ना अंदर अपने आप अगर बेहतर होंगे तो दूसरों से भी बेहतर है। अगर आप खुद अंदर से जो वो परेशान होंगे तो आपको पूरी दुनिया परेशान नजर आएगी। अगर आप खुद बेहतर होंगे तो पूरी दुनिया आपको अच्छी लगेगी।
तो ये बात यही करता है कि हमें लोगों को माना इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ये सबसे बड़ा हमारा पर्पस होना चाहिए, बेहतर ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हम इस तरीके से लोगों को देखते नहीं है, बड़े डिस्क्रिमिनेशन से देखते हैं लोगों को, बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और फर्क है कि किस कैटेगरी का कौन सा शख्स है। हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई है, टाइटल दिए हुए लोगों को, उस हिसाब से हम प्लेस करते हैं लोगों को। देखो, an age for all those unknown to us personally with whose destinies we are bound up by the tie of sympathy, and the other category of the people, other class of the people who are unknown, okay, who are under the surface, not known to us, we should literally do something. इसके कहने का मकसद है कि हमें बेलोस होकर काम करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में। हमें ये नहीं देखना है कि ये मेरी कास्ट का है, या ये मेरे रिलीजन का है, या मेरे क्लास फेलो है, या मेरे स्कूल का है, या कॉलेज का है, या मोहल्ले का है। नहीं, हर हर एक को इंसान समझे, बस इंसान समझ के उसके लिए करें, उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट करें। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा पर्पस जिंदगी का ये होना चाहिए, ये हमारा स्टेटस है। ठीक है, ये कहता है भले आप ना भी जाने, ऑल दोज अननोन टू अस पर्सनली, भले हम उनसे वाकिफ ना भी हो, लेकिन हमें लेट मी टेल हाउ मेनी ऑफ अस follow this mechanism or follow this tradition. How many of us respect the people, do something for the sake of the people? You will see, when you become professional people, you will surely serve the people regardless of their caste, color, creed. आप जब बनेंगे ना कुछ, तो सीधी सी बात है, फिर आप ये थोड़ी देखेंगे कि कौन आपके पास आया है, कौन इलाज करवाने या कौन किस काम से आया है, तो आपको उनके उनसे नहीं देखना है, लेकिन यू हैव टू सर्व। ये वो बात करता है, तो हमें मना करना चाहिए। लेकिन अब हम किस मैनर में वो चीज करते हैं, कितने हम कमिटेड है अपने जॉब से, ये फिर देखना पड़ेगा कि हम कमिटेड है या नहीं। आजकल सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है कि हाउ मच वी आर कमिटेड, devoted, or loyal and frank, honest, okay, in our jobs. So see that this is 100 times। ये एक और बात देखो, ये इंसान कितना इंस्पायर हुआ है, जिसको हम रिजिड बोलते हैं। लोग बोलते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा रिजिड था, रूड था, बड़ा ये तो विलन टाइप पर्सन था, इसका नाम ना लो क्योंकि क्योंकि इन्होंने फिजिक्स की वजह से नाम लो ऐसे। हाँ, तो फिर तो विलन किसमें का ही। अच्छा, तो ये देखो 100 टाइम्स, सुनो क्या कहता है, देखो अब ये झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि इससे जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। जो ट्विंकलिंग स्टार है ना, वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि उसकी मजबूरी नहीं है। झूठ वो बोलता है जिसकी मजबूरी होती है कोई ना कोई, तो इसको जरूरत नहीं है मना, झूठ रीजन नहीं है इसका। क्या कहता है, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, देखो 100 टाइम्स, 100, अब भी लिखा हुआ है 100 टाइम्स, ठीक है। 100 टाइम्स every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert, mana force myself in order to give in the same way as I have received and am still receiving। तो क्या कहता है देखो, कहता है माना कितनी बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, कितनी बार, 100 बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, रिमाइंड करवाता हूँ कि भाई आप जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, माना माना वो जो भी आप के चेहरे पे मुस्कुराहट, खुशी, या जो कुछ भी आप एक रेडीमेड स्ट्रक्चर लग रहे हो, ये सब जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये दूसरे लोगों का है। वो सब कुछ करते हैं हमारे लिए, उनकी वजह से। आप फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को देखो, आप इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में देखो, ये सारी चीजें तैयार होती हैं जो हमें मिलती है, हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी हमें तो पता है, भला हम उन लोगों को पहचान लें, पता है उनको, हम देखते हैं नहीं। ये कहता है सब कुछ इनकी वजह से हम इतने डिसेंट लगते हैं, या हम प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग लगते हैं। तो ये कहता है उनमें से कुछ जिंदा हैं, कई लोग मर भी गए होंगे, लेकिन हमसे कुछ नहीं हुआ उनके लिए, हमने कुछ नहीं किया।
तो एक ह्यूमैनिटी वाला लेसन है, देखो ह्यूमैनिटी के बारे में ये बात कर रहा है। तो ह्यूमैनिटी शुड बी अवर अवर प्योरिटी, ह्यूमैनिटी शुड बी प्योरिटी, ह्यूमैनिटी शुड बी अवर पर्पस। ठीक है, तो ये बात कर रहा है। एंड दैट ये कहता है सिर्फ इतना नहीं कि मैं फोर्स करता हूं अपने आप को, दैट आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ, आई फोर्स कन्विंस माई सेल्फ कि मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है, जैसे वो कर रहे हैं, जो फार्मर कर रहा है वो कुछ सोचता है कि ये गंदम किसको मिलेगी, कपास किसको मिलेगा, किसके पास, ये सोच के करता है? बिल्कुल नहीं। हमें भी इसमें बेलोस होकर काम करना चाहिए। अच्छा सॉरी, in order to give in the same manner as I have received and am still receiving, तो जिस मना मैनर में मैं रिसीव कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं रिटर्न भी इसी तरीके से करूं। I am strongly drawn to the simple life। देखो कौन है, कौन कह रहे हैं, आइंस्टाइन। कैसी लाइफ चाहिए इसको? सिंपल लाइफ। ठीक है ना, कौन माना सिंपल लाइफ के फेवर में, कौन डिजायर कर रहा है ये सिंपल लाइफ? ठीक है, तो देखो मैंने इतना बड़ा साइंटिस्ट, तो वो कौन सा है कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस, शायद ऐसा है एम्प्टी वेसल्स। तो देखो ग्लिटरिंग वो बनने की कोशिश करता है, ग्लिटरिंग वो बनने की कोशिश करता है, या मतलब वो इंसान अपने आप को माना ज्यादा बनाने की कोशिश करता है जिसके पास कुछ नहीं होता। तो इसकी मजबूरी है, डिपेंड नहीं करता कि अगर ये इतना सुपीरियर नहीं बनेगा तो बस ये मकबूल नहीं होगा, नहीं। आप पहले सब मतलब आप पहले बड़े बनो, अजीम बनो, फिर आप जो करोगे, फिर आपका जो आपकी ड्रेस होगी, जो आपका कल्चर होगा, जो आपका उठना बैठना होगा, जो आपका स्टाइल होगा, वो लोगों के लिए वो कल्चर बन जाएगा, वो लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। लोग उनको कॉपी करेंगे, लोग उनको इमिटेट करेंगे। लेकिन पहले हमें बड़ा बनना चाहिए, सबसे हमें अजीम बनना चाहिए। उसके बाद आप पहले आप ब्रांड बनो, उसके बाद ये नहीं, ये जो टैग है ना उसको हर एक फॉलो करेगा। ये कहता है मैं सिंपल, मतलब जिंदगी मुझे जो पसंद है वो सिंपलिसिटी वाली है, बस जरूरत ही नहीं है इसको, इसको क्या जरूरत है, इसको कोई जरूरत ही नहीं है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, कि भाई आप एक्सपेंसिव स्टाइल के लोग बनो तो फिर लोग जो है वो मतलब आपका एक बहुत बड़ा तारुफ हो जाएगा। तारुफ काम जो है वो तारुफ है, मेहनत तारुफ है, आपकी अचीवमेंट तारुफ है, ये काफी ये पजीरा है। तो ये कहता है सिंपल लाइफ एंड ऑफन oppressed बाय द फीलिंग दैट आई एम engrossing एन अननेसेसरी अमाउंट ऑफ द लेबर ऑफ माय फेलो मैन। क्या बात, देखो ये कहता है कि मैं सिंपल लाइफ इसीलिए क्योंकि मैं तो बेजा गैर जरूरी जो मेरे फेलो मैन है ना, उनके काम, उनकी बनाई हुई चीजें या उनकी मेहनत से बनाई हुई चीजें उनका बेजा जो है ना फायदा ले रहा हूं। गलत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बेड। तो ये कहता है मैं एक्सेसिवली चीजें जो यूज कर रहा हूँ उनकी, तो ये नहीं। तो सिंपल लाइफ से क्या होता है कि आप माना एक्सेसिव जो यूज होता है काफी चीजों का उनसे बच जाओ, जो कि गलत है। तो ये कहता है इसीलिए सिंपल लाइफ अच्छी है, वो किसी और को मिले। तो ये देखो पास्ट में आप देखेंगे लोग या बड़े जो डिग्नेटरीज के किस्से के आते हैं, स्टोरीज नैरेटिव्स बने हुए कि किसी को प्यास लगी हुई लाइन में पड़े, मतलब शदीद प्यास थी, पानी आया, ऑफर किया गया कि नहीं, दूसरे के तीसरे के, हालांकि सब प्यास है लेकिन फिर भी माना एक एग्जाम्पल सेट करते थे। तो ये होती है एक माना ट्रू फॉर्मेट ऑफ द लाइफ जो ये कह रहा है। मैं इसीलिए इसके ऊपर इतना फोकस से आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो एक ऐसे इंसान की माना एक आईने की तरह उसकी जिंदगी खुद लिखता है, ऐसे इसने खुद ने लिखा है। सामने आप खुद देखो कि वो क्या अपनी जिंदगी ये कहता है। और देखो आई रिगार्ड माना आई अंडरस्टैंड ना ये क्लास डिफरेंसेस एज कॉन्ट्ररी टू जस्टिस। कहता है ये जो क्लास डिफरेंस है ना, कि ये जो लोग तबकों में बांटे हुए कि कोई
ये इतना बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पैसों वाला है, कोई कम पैसों वाला है, या ये है। आजकल तो हमारी पहचान ये है ना, आजकल हमारी पहचान ये है कि कौन कितना बड़ा पैसों वाला है, किसका घर बड़ा है, किसके पास गाड़ियां हैं, या किसके पास ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई बाइक से उतरे, टीचर हमारे जैसा कोई बाइक से उतरे टीचर, और कोई जाए भले किसी बड़ी गाड़ी से उतरे, कितना बड़ा इंसान ये है, कामयाब इंसान। हमारे पास ये पहचान है। तो ये हमारा इन चीजों से देखो, ये बिल्कुल जो है ना खता है। अच्छा, फिर ये हुआ कहाँ हुआ? हाँ, तो ये कहता है टू जस्टिस एंड इन द लास्ट रिसोर्ट बेस्ड ऑन फोर्स आई ऑल्सो कंसिडर दैट प्लेन लिविंग इज गुड। प्लेन, वही प्लेन लिविंग। अब देखो प्लेन क्या, सिंपल। प्लेन लिविंग इज गुड फॉर एवरीबॉडी, फिजिकली एंड मेंटली। और प्लेन लिविंग क्या होती है? फिजिकली भी आप प्लेन बनो, मेंटली भी प्लेन बनो। मेंटली प्लेन कैसे बने भला बताओ? फिजिकली तो चलो हम मना, मतलब ये कि हम सादा जिंदगी गुजारे देखने में नजर आए, ठीक है, लेकिन मेंटली से मुराद क्या है? मतलब थॉट्स हमारी अच्छी हो, या हम हर चीज को नेचुरल एक्सेप्ट करें। ऐसा ना कि आप प्लेन लिविंग सिंपल लाइफ गुजारें, लेकिन अगर कहीं ऐसे क्राउड में जाकर बैठे जिधर आपको मना कुछ डिफरेंट पीपल, एलीट क्लास के पीपल नजर आ रहे हैं, वो आपसे थोड़े अलग लगे, वहां पर आप अपने आप को मना कम महसूस करने लगे, अपने आप को मना सस्पेक्ट करें कि पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ या क्या है। अच्छा तो देखो ये कितने मना एलीट क्लास के लग रहे हैं, इतनी बड़ी जो जो कोई अट्रैक्टिव गैलेक्सी लग रही है ये सारी। ये तो सफा है, तो जो वो बुझा हुआ बल्ब लग रहा है, पता नहीं क्या है ये सब। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कहता है, ये फीलिंग कहता है नहीं आनी चाहिए। बस माना आप उसको भी एंजॉय करें, ये ना कि ऐसे माना एक सफोकेशन में आ जाए, डिप्रेस हो जाए। मुझे बताओ ये होगा पॉसिबल है? हमसे होगा? ये माना ये हो, माना ऐसे इतने हम माना बन गए, इतने हम बन गए मजबूत कि हमें ये ख्याल ना आए। तो मेंटली प्लेन होना चाहिए, मेंटली इंसान के देख के, किसी को देख के हम एनवियस या जेलस ना हो, किसी को देखकर हम जो ना एनवियस या जेलस ना हो, हमारे अंदर कोई ऐसी माना पैदा ना हो, भाई ठीक है बस। ओके, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बड़ी बातें, अच्छी बातें हैं। मुझे लग रहा है मैं खुद आइंस्टाइन बन गया आज, इनकी लाइनें पढ़कर। अभी आगे वाले पैराग्राफ है वो भी हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा ये लिस्ट, बहुत अच्छा है। इसके बाद भी इसकी लाइनें वगैरह बहुत अच्छी हैं। इसकी एक कोट है मैं आपको बताऊंगा। ये कहता है मैं आइंस्टाइन क्यों बना, वरना मैं वरना कुछ नहीं बनता। मुझे एक लाइन ने मुझे आइंस्टाइन बनाया, वो ये। तो ये मैं कल आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, इसकी मीनिंग पूछूंगा। ये अ मैन कैन डू एज ही विल बट नॉट विल एज ही विल। एक जर्मन फिलोसोफर है, इसकी है कि जब मैंने ये कोट पढ़ी, उसके बाद मैंने कहा बस कुछ कम करना है, होना है। वो फिर जो आइंस्टाइन बनना। तो मैं आपसे पूछूंगा इसका मतलब क्या है, प्लीज कल बुक में देख कर आना, सेकंड पैराग्राफ में आपसे पूछूंगा। ओके, थैंक यू।